Hello and welcome to IC Mumbai online service. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आईसी मुंबई के ऑनलाइन सभा में। I hope you all are doing well. और मुझे यकीन है कि आप सब अच्छे हो। Now we all are going to praise God. और हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। Wherever you are, why don't you just stand up and let's praise together. जहाँ कहीं भी आप लोग हो, क्यों ना आप लोग खड़े हो जाए और हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे साथ में। And Johnny is going to lead us in praise today. और जॉनी हमें स्तुति में चलाएंगे आज रात। Come on, church. I got a feeling that I can't explain. I got a praise in me I can't contain. There is freedom running through my veins, 'cause your love has broken every chain. I wouldn't have made it, but you came and saved me. I'm celebrating 'cause you've been so good to me. जो भी हूँ मैं तुझे स्तुति दूँ, सब कुछ मुझ में तुझे स्तुति दे। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। तू अलग स्तर पर ले जाए, उसकी स्तुति बढ़ते जाए। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। Let's go! Hey! 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 In the middle of my circumstance, even when my heart don't understand, I rejoice and I lift up my hands. God, your presence is my promised land. Come on, church. I wouldn't have made it, but you came and saved me. I'm celebrating 'cause you've been so good to me. जो भी हूँ मैं तुझे स्तुति दूँ, सब कुछ मुझ में तुझे स्तुति दे। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। तो अलग स्तर पर ले जाए, उसकी स्तुति बढ़ते जाए। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। Let's go! Hey! 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 Sing your praise to him and sing it aloud. Sing your praise to him who rides on the clouds. Sing your praise to him or rocks will cry out. Come on, come on, everybody praise him now. Come on, church, come on, let's go. Hey. जो भी हूँ मैं तुझे स्तुति दूँ, सब कुछ मुझ में तुझे स्तुति दे। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। तू अलग स्तर पर ले जाए, उसकी स्तुति बढ़ते जाए। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। Let's go! Hey! 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 Hallelujah! Come on, church, praise him, praise him. Hallelujah. हालेलुया। Hope you had a wonderful time of praise. और मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा स्तुति किए It होंगे। is so good to praise God. और कितना अच्छा लगता है प्रभु की स्तुति करके। So today, if you are watching us online for the very first time,
अगर आज आप लोग पहली बार हमें ऑनलाइन देख रहे हो, you are a very special guest. आप हमारे सबसे खास मेहमान And we हो want to welcome you today. और हम आपकी स्वागत करना चाहते हैं And God bless you. और प्रभु आपको आशीष दे। And hope you have an amazing time today. और मुझे यकीन है कि आपका समय बहुत अच्छा बीते। So if you are really watching it for the first time, we want to know about you. तो अगर आप सच में पहली बार हमें देख रहे हो तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। So there is a link in the comment section where you can just click and fill in your details. तो कमेंट सेक्शन में एक लिंक है जहाँ पे आप लोग क्लिक करके अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हो And somebody from our side would definitely get in touch with you. और हमारे तरफ से कोई सच में आपके संपर्क में होगा। And enjoy the service today. और आज के सभा को आप बहुत लुत्फ उठाइए उसका। And let me just give you some announcements. और मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहूंगी। So this week we have a connect groups. इस हफ्ते कनेक्ट का सप्ताह है And it is the best time we have. और ये सबसे उम्दा समय है जो हमारे पास है। We get together, we pray, we sing, we have so much fun in connect groups. हम लोग एकजुट होते हैं, मिलते हैं, गाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं कनेक्ट ग्रुप If में। you are not a part of our connect group, अगर आप एक कनेक्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं हो please put your name in the comment section and we will get in touch with you. और अपना नाम आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम आपको आपके संपर्क में आएंगे। And why don't we now get into the time of tithe and offering? और क्यों ना हम लोग भेंट और दशमांश के समय की ओर बढ़े। And we have Johnny with us who will share the word of तो God. हमारे साथ जॉनी भाई है जो हमारे साथ वचन बांटेंगे। Good evening, church. और आपका स्वागत है कलीसिया। I hope you all are staying safe and you all are having some good time at home. और मुझे लगता है कि आप सब सुरक्षित हैं और आपका समय बहुत अच्छा है आपके घर में। I'm just going to read from the Bible, और मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ना चाहता हूँ। and this is in 1 Kings chapter 17 verses 8. और पहला राजा 17वां अध्याय से मैं पढ़ने वाला हूँ। Then the Lord said to Elijah, और फिर प्रभु ने इलाइशा से कहा, "Go and live in the village of Zarephath near the city of Sidon. और सीदोन शहर के बाजू में एक गांव है ज़ारफेत नाम का, वहां पर जाकर आप ठहरना। I have instructed a widow over there to feed you." और मैंने वहां पर एक विधवा स्त्री है, उससे कहा है कि वो आपको खाना दे। So Elijah went to Zarephath. तो इलाइशा जो है वो वहां पर जाते हैं। As he arrived, और वो जैसे वहां पर पहुंचे, he sees a widow who is gathering sticks from the ground. और उसने एक विधवा को देखा जो लकड़ियां जमा कर रही थी। And he asked her, और उसने उनसे पूछा, "Would you please bring me little water in a cup?" क्या आप थोड़ा सा पानी मुझे लाकर दे सकते हो? As she was going to get it, he called to her again. और जैसे वो जा ही रही थी पानी लाने के लिए, फिर से इलाइजा ने उनको पुकारा और कहा, "Bring me a bite of bread too." और मेरे लिए खाने के लिए एक टुकड़ा भी लेके आना रोटी का। But she said, लेकिन उसने कहा, "I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house." और उसने कहा कि प्रभु जानता है कि मेरे घर में एक टुकड़ा भी नहीं है रोटी का। "And I have only a handful of flour और मेरे पास तो एक मुट्ठी भर जो है आटा है, and little cooking oil in the bottom. और थोड़ा सा तेल बचा हुआ है। I was just gathering a few sticks to cook my last meal." और मैं तो सिर्फ वो थोड़ी सी लकड़ियां जमा कर रही थी ताकि मैं मेरा आखिरी खाना जो है वो बना सकूं। "And then my son and I am going to die." और उसके बाद मेरा बेटा और मैं जो है हम खाकर मर जाएंगे। But Elijah said to her, लेकिन इलाइजा ने उनसे कहा, "Don't be afraid." डरना नहीं। He said, "Don't be afraid. उसने कहा उनसे कि डरो नहीं। Go ahead and just do what I have said to you और उसने कहा कि जाओ और वो करना जो मैंने आपसे कहा है, and make me bread first. और मेरे लिए आप रोटी बना कर ले आना, Then use what's left to prepare a meal for yourself और जो भी बचा है उससे आप अपने घर के लिए खाना बना and लीजिए your son. और आपके बेटे के लिए। For this is what the Lord, the God, has told me. और यही इस संसार का जो परमेश्वर है जो जिसने मुझसे कहा।
And when you do this, और जब तू ये करेगी, this is amazing. He said, when you do this, और ये बहुत अद्भुत बात है, इसने कहा कि जब तुम करोगे there will always be flour and olive oil in your jar. और तुम्हारे घर में जो आटा है वो हमेशा के लिए रहेगा और जो तेल है वो भी कभी खत्म नहीं होगा. Now, what I want you to pay attention is, और अभी आपको इस बात पे ध्यान देना है. she said she had the last meal. उसने कहा कि मेरे पास तो आखिरी जो खाना है वो बचा हुआ है. But Elijah said, this is what God has told me to do. लेकिन इलाइजा ने कहा प्रभु ने मुझसे ये कहा है कहने के लिए. Now remember, God is always going to give you a choice. अभी याद रखना प्रभु जो है आपको हमेशा एक निर्णय लेने का मौका देंगे. You can look at your situation and say, I'm going to die, or I'm going to do this and die, or not live. और आप शायद अपने हालात को देखकर ये कह सकते हो कि हम ये खाकर मर जाएंगे यहीं पर. Or you can decide to do what God tells you and live an eternal life. या फिर आप प्रभु की बात को मानकर जो है आगे के जीवन को बिता सकते हैं. Ahead it says, she did as Elijah said. और आगे लिखा गया है कि उसने वैसे ही किया जैसे इलाइजा ने कहा था. And guess what? और उसके बाद पता है क्या हुआ? There was always enough flour and olive oil left in containers that she had. और उसके पास जितने भी बर्तन थे उसमें सारे में उसने आटा और तेल जो है वो भरी. Just as God promised. और जैसे प्रभु ने उसको वाचा दिया था. Now here's the thing. और यहाँ पर एक बात है. God is going to make you take some tough decisions in life. और प्रभु शायद आपको भी ऐसा मौका देंगे जहाँ पर आपको निर्णय लेना है और वो बहुत मुश्किल है. You're going to have the last 10 rupees and after that be broke. और शायद आपके पास वो 10 रुपया होगा जो आखिरी है, उसके बाद कुछ नहीं है आपके पास. And you might either buy a vada pav, और शायद आप कोई वड़ा पाव खरीद सकते हो खाने के लिए. or God is going to tell you to put that 10 rupees as your offering or your tithes. या फिर वो 10 रुपए से आपको प्रभु कहता है कि तू दान दे दे इसको. And you will have enough of vada pavs left. और शायद आपके पास बहुत सारे वड़ा पाव बचे रहेंगे खाने के लिए. So you see, what I'm trying to say here is, और मैं आपको बस यही बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर. never give up on God, और प्रभु पे कभी भी हार नहीं मानना. because He never gives up on you. क्योंकि वो आपसे कभी हार नहीं मानता. So here is what I want to say to you today evening, and I'm challenging you. और आज शाम भी मैं यही बात बताना चाहता हूँ और आपको मैं चुनौती देता हूँ. I'm not saying put all your money for your tithes and offering. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पैसे लाकर आप प्रभु के दान में दे देना. God provides money. He doesn't need our money. प्रभु को जो है हमारी पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो खुद हमको जो है अपने बड़े भंडार से देता है. All He wants to see is where your heart lies, और वो तो सिर्फ यही जानना चाहता है कि आपका हृदय कहाँ पर है, where your intentions lie. आपकी सोच कहाँ पर है. And when we trust God with every single thing we have, और जब हम प्रभु पे भरोसा करते वो हर एक छोटी चीज़ जो हमारे पास है उससे, He will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं और कभी त्यागेगा नहीं. So wherever you are right now, let's all bow our heads and close our eyes. आप जहाँ पर भी हो क्यों ना हम जो है हमारे मुंडी को नीचे कर कर जो है प्रभु के ओर देखेंगे. And I just want to pray for you tonight. और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं. God, I come before your throne of grace today. और प्रभु मैं आपके सामने झुकता हूँ. And Lord, I thank you for each and every person watching this online service right now. और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक उस इंसान के लिए जो ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ा हुआ है. Lord, I pray that you will bless them. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम उनको आशीष करना. And not only bless them one time, two times, but you will bless them 1,000-fold, oh Lord. और प्रभु उनको एक बार दो बार नहीं प्रभु लेकिन 1000 गुना जो है उनको आशीषित करना. And even as we give to you today, और प्रभु जैसे हम आज आपको देते हैं, I pray that whatever we get is going to be used for your kingdom, for your glory, and for your expansion of the kingdom. और प्रभु जो भी हम आज आपके हाथों में देते हैं प्रभु वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए और आपके राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए.
In your name I pray. और हम आपके नाम में मांगते हैं प्रभु, Amen. आमेन। Why don't we just get into some worship tonight? Oh Jesus. Oh, we thank you, Lord. Close enough to feel your touch. I'm in your loving arms. Worship is my heart's response. You're all I want. You're all I want. Jesus. Close enough to seek your face. I'm caught in your eyes, your gaze. I can hear the sound of heaven. You call my name, you call my name. करीब मैं आता हूँ, सब कुछ तू तुझे, स्तुति दू तुझे, आशीष भी दू तुझे। हैरान हूँ मैं तेरे प्यार में यीशु। Close enough to hear you speak. Abide with me in fields of praise. Your presence, Lord, is all I seek. You're all I want. You're all I want. करीब मैं आता हूँ, सब कुछ तू तुझे, स्तुति दू तुझे, आशीष भी दू तुझे। हैरान हूँ मैं तेरे प्यार में यीशु। करीब मैं आता हूँ, सब कुछ तू तुझे, स्तुति दू तुझे, आशीष भी दू तुझे। हैरान हूँ मैं तेरे प्यार में यीशु। We lift your name high, Jesus. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं, देखूं जहाँ मैं महिमा चारों ओर। विश्वास बढ़ रहा, स्तुति दिल मेरा दे। प्रभु तू मेरा सब कुछ है। महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं, देखूं जहाँ मैं महिमा चारों ओर। विश्वास बढ़ रहा,
स्तुति दिल मेरा दे प्रभु तू मेरा सब कुछ है महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं देखूं जहाँ महिमा चारों ओर विश्वास बढ़ रहा स्तुति दिल मेरा दे प्रभु तू मेरा सब कुछ है महसूस रूह में कर रहा देखूं जहाँ महिमा चारों ओर विश्वास बढ़ रहा स्तुति दिल मेरा दे प्रभु तू मेरा सब कुछ है मैं आता हूँ सब कुछ तू तुझे स्तुति दूं तुझे आशीष भी दूं तुझे हैरान हूँ मैं तेरे प्यार में यीशु ओ महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं देखूं जहाँ में महिमा चारों ओर विश्वास बढ़ रहा स्तुति दिल मेरा दे प्रभु तू मेरा सब कुछ है महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं देखूं जहाँ में महिमा चारों ओर विश्वास बढ़ रहा स्तुति दिल मेरा दे प्रभु तू मेरा सब कुछ है महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं देखूं जहाँ पे महिमा चारों ओर विश्वास बढ़ रहा स्तुति दिल मेरा दे प्रभु तू मेरा सब कुछ है महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं देखूं जहाँ महिमा चारों ओर विश्वास बढ़ रहा स्तुति दिल मेरा दे प्रभु तू मेरा सब कुछ है ओ, तू मेरा सब कुछ है जीसस तू मेरा सब कुछ है तू मेरा सब कुछ है Lord Jesus, ओ प्यारे यीशु I just thank you for this awesome time of worship. और मैं धन्यवाद देती हूँ इस आराधना का समय के लिए Thank you for your presence, Lord God. और धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए Holy Spirit, I just ask for this one thing. और पवित्र आत्मा मैं सिर्फ एक चीज मांगती हूँ Fill our hearts, mind and soul with your presence. हमारे हृदय को हमारी आत्मा को हमारी सोच को अपनी उपस्थिति से भर देना Let there be a supernatural peace over us. और प्रभु आज एक अद्भुत रीति का एक शांति बने रहे हमारे God, हृदय में hide me when I preach और प्रभु मुझे तू छुपा लेना जब मैं प्रचार करती and हूँ reveal yourself. और अपने आप को तू लोगों को दर्शाना Let only your word intervene between us. और प्रभु हमारे बीच में सिर्फ आपकी शब्द जो है वो बात करे Let this night be a night of prophecy, और प्रभु आज रात जो है बस ऐसी रात बने जहाँ पर भविष्यवाणी हो a night of authority, और प्रभु एक अधिकार की रात a night of vision,
और एक दर्शन की रात, a night of words. और एक शब्दों की रात, And I just give everything into your hand. और मैं सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ। And above all, और सबके अलावा let this night be a night of salvation. और ये रात जो है ऐसा रात हो जहाँ पर लोग बच जाए आपके लिए। In Jesus' name I pray. और प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमेन। Thank you, Johnny. Thank you, Mika. और धन्यवाद जॉनी, धन्यवाद मीका। Church, you're in for an amazing encounter with God. और कलीसिया, आप जो है एक अद्भुत रात के लिए तैयार हो जो प्रभु के साथ मुलाकात होने वाली है। Before starting to preach, I want to tell something. और शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। Last week we saw how Angel preached about miracles. और गए हफ्ते कैसे एंजल ने जो है प्रचार किया था चमत्कार के बारे में। She said about the times when God does miracle in your life. और उसने इसके बारे में बात किया था कि कैसे कौन से समय में जो है प्रभु चमत्कार करते हैं। And even I am going to preach about miracle today. और मैं भी चमत्कार के बारे में ही बात करने वाली But हूँ। I'm sure God is going to reveal something else to you. लेकिन मुझे पता है कि प्रभु कुछ और आपको बात बताने वाला है। So get ready. तो आप तैयार हो जाइए। So let's see what miracle means. तो हम देखते हैं कि चमत्कार क्या है। It is an event not explainable by nature or any scientific laws. वो एक ऐसा संभव है जो कोई जो है उसको आपको समझा नहीं सकता है, कोई वैज्ञान सिद्धांत भी आपको समझा नहीं पाएगा। It's in simple word I can say this. और एक आसान शब्दों में मैं ये बता सकती हूँ, It has no reason. और उसका कोई कारण नहीं है। You can't figure out how it happened, why it happened, who did it, nothing. आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कैसे हुआ, किसने किया, कुछ नहीं पता होगा। Just it's like out of your understanding. और वो आपके समझ के पार है। We all agree, right, Angel? और हम सब इस बात से सहमत है, सही प्रिया? Some or the other time we need a miracle in our life. और शायद कभी ना कभी हम सबको चमत्कार की जरूरत होती है। And we as human beings, और जैसे हम इंसान हैं, most of us think rationally. और हम जो है हमारी सोच जो है वो सीमित रहती है। That means we think in a limited manner. और इसका मतलब ये है हम एक स्थान तक ही हम सोच सकते हैं। When something is not in our control, we stop. और जब हमारे काबू में नहीं है हम उसके बारे में सोच नहीं पाते। But there is a difference. लेकिन वहाँ पर एक अंतर भी है। Difference between people of God and people of this world. और अंतर प्रभु के लोगों में और इस दुनिया के लोगों के बीच। People of this world, their thinking is limited. और इस संसार के जो लोग हैं उनकी सोच जो है वो सीमित है। They can think about nature and science, nothing beyond that. और वो जो है प्रकृति और विज्ञान इन दोनों बातों तक ही वो सोच सकते हैं। But people of God church, लेकिन प्रभु के जो बच्चे हैं they कलीसिया, think beyond the normal. और वो जो है साधारण बातों से भी ज्यादा सोचते हैं। Or Angel, to be more precise, और प्रिया इसके बारे में अधिक बताने के लिए, they should think beyond normal. और जो प्रभु के बच्चे हैं वो सच में जो है वैसा ही सोचना चाहिए। And we speak from word, and word is truth, right? और हम जो है वचन से बोलते हैं और वचन सच्चा है। Why do you need to think like that? और ऐसा क्यों आपको सोचना है? Isaiah 55:8 says, और इज़ाया का 55:8वां वचन ये कहता है, For my thoughts are not your thoughts, क्योंकि मेरी सोच तुम्हारे सोच नहीं है, neither your ways are my ways, और ना ही आपके रास्ते मेरे रास्ते हैं, declares the Lord. और कहता है प्रभु। As the heavens are higher than the earth, और जैसा ये स्वर्ग जो है ये इस दुनिया से ऊंचा है, so are my ways higher than your और ways, वैसे ही मेरे रास्ते तेरे से भी ऊंचे हैं, and my thoughts than your thoughts. और मेरे सोच तेरे सोच से ऊंचे हैं। So people of God, if God thinks like that, then we should be not thinking normal. और प्रभु के बच्चे, जब प्रभु वैसा सोचता है, हमको भी साधारण रीति से सोचना नहीं चाहिए। But Angel, what has our thoughts got to do with miracles? लेकिन प्रिया, ये हमारे सोच में और चमत्कार का क्या मतलब है? Before explaining about miracle or preaching about it, और मैं इसके बारे में प्रचार करने से थोड़ा पहले, there is a word people are confused with. और लोग जो है थोड़ा जो है बहक गए हैं इस शब्द को लेकर, Between magic and miracle. और एक चमत्कार और एक जादू के बीच में। The worldly definition, or people might say, oh, both are the same. और संसार के लोग शायद कहेंगे कि दोनों एक है, चमत्कार और जादू। But beware, church, both are totally different. और कलीसिया, ध्यान रखना, दोनों भी अलग है। Magic is a trick. और जो जादू है वो एक ट्रिक है, It can be learnt. और वो जो है लोग सीख सकते हैं। Basically, it's illusion. और वो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक मोहमाया है।
which means it's not true what you're seeing. इसका मतलब ये है कि वो सच नहीं है जो आप देख रहे हैं। Means magic is a lie. इसका मतलब ये जादू जो है वो झूठ है। But in contrast, miracle, लेकिन जो चमत्कार है इसके सामने it is beyond natural. वो जो है आपके कुदरती से बहुत ज़्यादा दूर है। You can't learn to perform it. आप जो है उसको सीख नहीं सकते हैं। It is only God who can perform miracle. प्रभु ही जो है चमत्कार करता है। And God is not a liar. और क्या आपको पता है कि प्रभु जो है झूठ नहीं बोलता He won't trick you. और वो जो है आपके साथ झूठा व्यवहार नहीं करता And He won't create an illusion. और वो जो है मोह माया नहीं दिखाता Because He is a miracle worker. क्योंकि वो जो है चमत्कार करने वाला है। Like Isaiah 55:8 says, और कैसे आइजाया 55:8 में कहा you गया can't है। imagine how He did it. और आप नहीं सोच सकते हो कि उसने कैसे किया And you can't find out how He does it. और आप उसको पहचान भी नहीं सकते हो कि उसने कैसे किया है That's why it's a miracle. और इसलिए वो चमत्कार है। So when God does it, it's a miracle. और जब प्रभु करता है वो चमत्कार है। So the topic for today's sermon is तो आज का जो शीर्षक है हमारे प्रचार का, how to receive your miracle. और कैसे आप चमत्कार को पाओगे। Before sharing the points, और हम इस मुद्दे के बारे में बात करने से पहले I would like to narrate a very short story. मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। The story is from Mark chapter 5, और ये मार्कुस का पुस्तक 5वां अध्याय से लिखा गया है, from verse 21 to 34. 21 से 34 तक। I'm not going to read it. और मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं I'll just narrate it. और मैं आपको बता दूंगी। Jesus was on his way, और प्रभु जो है रास्ते में थे and there was this Jairus who came to Jesus. और जाइरस वहां पर आता है प्रभु के पास And he's like, Jesus, heal my daughter. She's about to die. और वो कहता है कि यीशु मेरी बेटी को तू चंगा कर देना, वो मरने वाली है। So Jesus was on his way to perform a miracle. और प्रभु जो है रास्ते में थे किसी के चमत्कार के लिए। And you know, Jesus is the God, the superstar, the guy. और आपको पता है वो परमेश्वर है, वही सुपरस्टार है, वही चमत्कार करने वाला So है। wherever he went, crowd followed him. और वो जहाँ पर भी जाते थे भीड़ जमा हो जाती And थी। in this crowd, there was a woman. और उस भीड़ में वहां पर एक स्त्री थी She was bleeding for 12 years. और वो 12 साल से जो है उसको लहू बहने की बीमारी थी। She went to all kind of doctors. और वो जो है बहुत सारे जो है डॉक्टरों के पास गई। The story even says she spent all she had and became even more worse. और कहानी ये कहती है कि उसने अपना सारा पैसा जो है खर्चा कर दिया और वो जो है बहुत बुरी स्थिति पर थी। That means she didn't have any healing, इसका मतलब ये है उसके पास कोई चमत्कार नहीं था no hopes. और कोई आशा नहीं थी। She heard about Jesus, और उसने जो है प्रभु के बारे में सुना। and in that time she was not allowed in the village. और उस जमाने में जो है उसको अनुमति नहीं थी उस गांव में आने की। But she took an effort. लेकिन उसने एक जो है निर्णय लिया She went through the crowd और वो उस भीड़ के बीच में गई and she just touched his cloak और उसने तो सिर्फ उसके कपड़े के छोर को because she had faith that she can get healed. क्योंकि वो उसमें विश्वास था कि वो जो है चमत्कार पाएगी। And guess what, Angel? और क्या पता है प्रिया, She of course got healed. और वो सच में चमत्कार पाई। In verse 34, और 34 में लिखा गया है it says, और वो ये कहा गया after है, healing, Jesus says this to her, और ये वो चमत्कार पाने के बाद प्रभु यीशु ने उससे ये कहा, daughter, और बेटी, your faith has healed you. आपके विश्वास ने आपको जो है चंगा किया है। Go in peace और आप शांति से जाना and be freed from all your sufferings. और सारे परेशानियों से दूर हो जाना। In this story, you see how does healing come. और आपने इस कहानी में देखा कि कैसे चमत्कार आता है। This woman have waited for too long, और ये स्त्री बहुत समय से रुकी थी went to all kind of doctors, और बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई spent all her fortunes, और सारे पैसे उसने बर्बाद कर दिए, yet didn't get healed. लेकिन उसको चमत्कार नहीं मिला। But when she heard about Jesus, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना, she knew he could heal her. वो जानती थी कि प्रभु यीशु उसको चंगा कर सकता है। So she heard about him, और लेकिन उसने उसके बारे में सुना she acted on it, और उसने उस पर काम किया took a step of faith, और उसने विश्वास का कदम and उठाया received it. और उसने अपने चमत्कार को भी पाया। What was the driving factor for all these things? और ये सब चीजों को भगाने वाला ऐसा कौन सा बात है? You know what it is? क्या आपको पता है क्या? You know what it is? क्या आपको पता है वो क्या है? It's this big word, और ये बड़ी शब्द है, yet so simple. लेकिन बहुत असाधारण सी बात है। It's faith. बस विश्वास है, That's all. Faith, nothing else. बस विश्वास है और कुछ नहीं। Jesus didn't say that my power has healed you, though it did. और प्रभु ने ये नहीं कहा कि मेरे सामर्थ ने जो है
तुझे छुटकारा दिया, सच में वही था, उसका सामर्थ्य नहीं छुटकारा दिलाया था। As we see in Bible, जैसे हम वचन में देखते हैं, he said, उसने ये कहा, your faith has healed you. तुम्हारे विश्वास ने तुमको चमत्कार किया। Faith can move mountains. और क्या आपको पता है कि आपका विश्वास जो है पहाड़ों को हिला सकता So है। if it can move mountains, it can of course heal you. जब वो पहाड़ को हिला सकता है तो सच में वो आपको भी चमत्कार दे सकता है। Now church, तो कलीसिया, healing is the biggest miracle one could ever receive. और क्या आपको पता है कि चंगाई सबसे बड़ी चमत्कार है कोई भी इंसान के लिए, For that we need faith. लेकिन उसके लिए आपको विश्वास की ज़रूरत है। And faith brings miracle. और विश्वास जो है चमत्कार ले आता है। How do you receive your miracle? और कैसे आपको चमत्कार मिलेगी? Hearing by faith. और आप जब विश्वास से सुनोगे, That's the first point. Hearing by faith. और पहला मुद्दा ये है कि आप जब विश्वास से सुनोगे, Romans chapter 10:17 और says, रोमियो का 10-17वां अध्याय ये कहता है, so faith comes from hearing, और विश्वास जो है सुनने से आता है, and hearing through the word of God. और प्रभु के वचन को सुनने से आता है। It's simple. और ये बहुत आसान है। You hear और आप सुनते हो from the word of God और प्रभु के वचन से, and you build your faith. और आप अपने विश्वास को बढ़ाते हो। I would illustrate this. और मैं इसके बारे में कहानी बताती हूँ। This woman might have heard that Jesus healed this boy. Jesus did this. Jesus is the healer. He works miracle. और शायद ये स्त्री ने जो है सुना होगा, प्रभु ने उस लड़के को चमत्कार किया, प्रभु ने उसको चंगा किया है, और वो चमत्कार करता है, वो चंगाई दिलाता है, तो उसने सुना होगा। But also she might have heard something else. और उसने और एक बात भी सुना होगा, 12 years lady, mad lady, you won't get healed. Don't go to that Jesus. और 12 साल पागल औरत, वहां पे मत जाना, कुछ नहीं होगा। But she ignored that लेकिन उसने उस सब को नकारा, because she heard the word of faith. क्योंकि उसने जो है विश्वास ये शब्द पे ध्यान दिया। Because in Romans 8 chapter 11 it says, रोमियो का 8वां अध्याय 11वां वचन ये कहता है, before that she heard by faith and she took a step of faith. उसके पहले उसने विश्वास से सुना और उसने एक कदम उठाया था। That's how she got her healing, by और faith. वैसे ही उसने जो है चमत्कार भी पाया। We can do the same. हम भी वही कर सकते हैं। Romans 8:11 says, रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 11वां वचन, the Spirit of God और प्रभु का जो आत्मा है, who raised Jesus from the dead जिसने प्रभु यीशु को मृत्यु से जिलाया, lives in you. आपके अंदर जीवित है। And just as God raised Christ Jesus from the dead, और जैसे खुदा ने प्रभु यीशु को जिलाया, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. और आपको भी, आपके मृत्यु शरीर को भी वो जीवन देगा उसी सामर्थी आत्मा से। Imagine raising a person from dead. और आप सोचिए इसके बारे में, कोई मर चुका है और उसको जो है आप जलाते हो। You heard it right. Raising a person from dead, और सच बात है, आपने सही सुना, एक मरे हुए इंसान को जो है जी उठाना, and not a normal person. और एक कोई साधारण सी इंसान के बारे में नहीं। It was Jesus the God, और वो प्रभु यीशु था, the same Spirit that raised him from dead. और वही आत्मा जो प्रभु यीशु को उठा सकता है, It's living in us. और वो हमारे अंदर जीवित है। So if we are hearing this word, और अगर आप इस बात को सुन रहे हो, if we are hearing by faith, अगर आप विश्वास से सुन रहे हो, we can declare this word on our life, और हम लोग जो है इस बात को जो है हमारे जीवन में घोषणा कर सकते हैं, and we can get a miracle. और हम चमत्कार देख सकते हैं। Because church, if somebody is raised alive from dead, और कलीसिया, अगर कोई जिंदा उठ सकता है मरने के बाद, the same power can solve any problem in our life. और वही सामर्थ कोई भी समस्या को दूर कर सकता है हमारे जीवन में। So how do you receive your miracle? और कैसे आप अपने चमत्कार को पा सकते Of हो? course by faith, और सही बात है, विश्वास से, but hearing by faith first. और पहली बात तो विश्वास से सुनने से। So pray to God that God opens your ears. और आप प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु आपके कानों को जो है खोल दे ताकि आप सुन सके। And the second point, और दूसरा मुद्दा, once you have heard by faith, और जो आप जब सुन लेते हो विश्वास से, you have to act by faith. उसके बाद जो है आपको काम करना है विश्वास You have से, to act in faith. और आपको विश्वास में काम करना है। How? कैसे? Proverbs chapter 3, 5, 6 says, नीति वचन 3 अध्याय 5वां वचन ये कहता है, trust in the Lord
और प्रभु पे भरोसा करना with all your heart. अपने पूरे हृदय से, Do not depend on your own understanding. अपने खुद के समझ पर निर्भर न रहना Seek His will और उसकी इच्छा को ढूंढना in all you do, और सब जो भी आप करते हो, and He will show you which path to take. और वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे चलना है। This verse says that acting in faith means trusting in Lord. और ये वचन ये कहता है कि विश्वास में काम करना, इसका मतलब ये है कि आप प्रभु पे भरोसा करते हो। Remember we spoke about the thoughts? और आपको याद है हमने सोच के बारे में बोला था, This clearly says, do not depend on your own understanding. और ये वचन साफ कहता है अपने खुद की समझ पे मत रहना, Instead, seek His will, लेकिन उसके जो इच्छा है उस पे उसके अनुसार रहना। and He will tell you which path to take. That means He will tell you how to act in faith. और इसका मतलब ये है कि वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे विश्वास में चलना है। Now, if we look in the story, और जैसे आप इस कहानी में देखते हो, many people have spoke negative in that woman's life, और शायद बहुत सारे लोग जो है नकारात्मक बातें जो है कहे होंगे उस स्त्री के जीवन but में, she ignored it, लेकिन उसने जो है सब चीज को नकारा and she acted in faith. और उसने जो है विश्वास में काम किया, She took a step of faith. और उसने जो है विश्वास का कदम उठाया। In that time, the society was patriarchal, और उस समय में जो है वो एक अलग सोच के लोग रहते थे, and bleeding women was seen as a taboo. और एक स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी है उसको जो है अचूक कहा जाता था। See the coronavirus situation now? और अभी आप जो इस सिचुएशन में देखते हो, अभी का समय जो है कोरोना वायरस का, I'll put it more in a contemporary way. और अभी मैं आपको हमारे समाज के समय से बताती हूँ। Imagine a person infected by coronavirus. और आप सोचिए एक इंसान जिसको कोरोना वायरस हो गया है He's meant to be isolated, और उसको अकेले रहना है, but he walks into the crowd because he saw Jesus, और लेकिन वो जो है प्रभु यीशु को देखा और वो गर्दी में आता and है, everyone knows he's infected. और सब जानते हैं कि उसको वायरस इफेक्ट किया है। Imagine the way of faith he has, और सोचिए उसका जो विश्वास था उस समय, because that person knows Jesus can heal him. क्योंकि वो जानता था कि प्रभु यीशु जो है उसको चमत्कार दिला सकते हैं। But at what risk? लेकिन कौन सा बड़ी मुश्किल की बात थी। It takes just one fanatic to just lift up a stone and kill that person. बस एक पागल इंसान की जरूरत थी वहां पर जो उस पे पत्थर फेंक कर उसको मार डाले, But it all was driven by faith. लेकिन सब कुछ विश्वास से चल रहा था। She knew that Jesus could heal her. वो जानती थी कि प्रभु यीशु उसको चमत्कार दिला सकता है, She knew that her miracle is on her way. और वो जानती थी कि उसका चमत्कार जो है वो रास्ते पर है। So after hearing by faith that he heals, और जैसे उसने सुना कि विश्वास से ही उसको चमत्कार मिलेगा, she acted in faith. और उसने जो है विश्वास में काम भी किया, She took a step of faith against all odds. और उसने वो सारे स्थिति और समाज सबसे अलग उसने अपनी सोच को रखा। So church, तो कलीसिया, today you might be in your workplace, और शायद आप अपने काम के in स्थान this पर हो, lockdown situation, और ये जब लॉकडाउन हो चुका है, or your health might be deteriorating. और शायद आपका जो शारीरिक रूप में कोई जो जो स्थान है कुछ भी शायद वो बिगड़ता रहेगा, Or you might see your loved one suffering. और या फिर आपका जो कोई प्यार, आप जिसे प्यार करते हो उनकी मुश्किल रहेगी, God might tell you to take a step of faith. और प्रभु जो है आपको एक विश्वास का कदम उठाने से कहेंगे। It might seem too hard. वो शायद बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, It might seem foolish to you. वो शायद पागलपन भी लगता रहे, Or it might bring dangerous consequences if it goes wrong. और अगर वो गलत हो जाएगा तो बहुत मुश्किल में भी आप पड़ सकते हो। But if you know that it is Jesus who told you to take that step, लेकिन अगर आप जानते हो कि प्रभु यीशु ने आपसे कहा है उस कदम को उठाने के लिए, I can assure you, you will for sure get your miracle. मैं आपको सच में बता सकती हूँ आपको अपना चमत्कार मिल ही जाएगा। By trusting in Lord, प्रभु पे जब आप विश्वास करते हो, you act in faith. आप जो है विश्वास से काम करते हो, By listening to His word, और जब आप उसकी वचन को सुनते हो, that's point one, you hear by faith, और जब आप विश्वास से सुनते हो पहला मुद्दा, and trusting Him, और उसके बाद आप विश्वास करते हो you act in faith. और आप उसमें चलने लगते हो, And last one is totally simple. और तीसरा मुद्दा बहुत आसान है। Like in verse 34, Jesus said, और 34 वाले ये वचन में प्रभु यीशु ने कहा, you are healed by your faith. और आपके विश्वास से आपको चमत्कार मिला The है। third point is receiving in faith. और तीसरा मुद्दा ये है कि विश्वास में पा लेना, Miracle doesn't work one way. और चमत्कार जो है वो सिर्फ एक तरफ से काम नहीं करता। It's like if you're thirsty angel, और इसका मतलब ये है अगर प्रिया आप जो प्यासे हो, if you ask for water, अगर आप मुझसे पानी पूछते हो, I'll give you water. मैं आपको पानी देती हूँ। You're grown enough to just
take that water and drink for yourself. आप इतने बड़े हो गए कि आप वो खुद पानी लेकर पी सकते हो, But you know how it works one way? लेकिन क्या आपको पता है कैसे एक तरीके से काम करता है? I'll be like, Angel, drink this water, you're thirsty. और मैं कहती हूँ कि प्रिया पानी पी लो, आप बहुत प्यासे हो. And Angel is like, I'm thirsty, I'm dying, I'm thirsty, I'm dying, somebody give me water. और प्रिया ऐसे कहती रहेगी, अरे मैं प्यासी हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मैं प्यासी हूँ, मुझे कोई पानी दे दो, मुझे कोई पानी दे दो. And the spectator will be like, you dumb person, just take that glass and drink the water. और जो लोग जो देख रहे हैं वो लोग कहते रहेंगे, अरे पागल, पानी का लेके पी लेना और जिंदा हो जाओ. That's how your miracle works. और वैसे ही आपका चमत्कार भी काम करता You है. heard by faith, और आपने जो है विश्वास से सुना, you acted in faith, आपने जो है काम भी किया, God is already giving you your miracle. और प्रभु ने आपको अपना चमत्कार दे दिया है. All you have to do is receive it in faith. अभी जो है आपको उस चमत्कार को पा लेना है. How do you receive in faith? और कैसे आप इस चमत्कार को पा सकते हो? Matthew 21:22 says, मत्ती 21:22 वचन कहता है, if you believe, जब आप विश्वास करते हो you will receive. आप जो है इसको पाओगे. I'll say it again. If you believe, जब आप विश्वास करोगे you will receive आप पाओगे. whatever आप जो भी ask for in prayer. जो भी आपने मांगा है प्रभु से आपके प्रार्थना में. The woman received a miracle. और उस स्त्री को जो है चमत्कार मिला. Like Jesus said, she received in faith. और जैसे प्रभु ने कहा कि विश्वास के द्वारा उसको उसका चमत्कार मिला. So when we ask for a miracle, जब हम हमारा चमत्कार मांगते हैं, we need to receive it in faith. हमको जो है विश्वास में उसको पाना है. So church, और कलीसिया, I would like to conclude. और मैं खत्म करना चाहती हूँ. If you are waiting for your miracle, अगर आप इंतजार में हो आपके चमत्कार के your लिए, miracle might be anything. आपका चमत्कार कुछ भी हो सकता है. You have to hear in faith first. आपको जो है विश्वास में सुनना है. Because sometimes what you are expecting for is not what God actually wants you to. और कभी कभी आप शायद कुछ चीज़ों के इंतजार में है, लेकिन शायद प्रभु की इच्छा नहीं है वो. So whenever you ask for a miracle, ask God that, God, am I going to receive it? जब प्रभु आपको कोई चमत्कार की जरूरत है, आप प्रभु से पूछ लेना कि प्रभु या मेरे लिए है कि नहीं, Is my desire right? या मेरी इच्छा जो है वो सही है या नहीं. If yes, then hear from Him. और प्रभु अगर कहता है तो उससे सुनिएगा. And hear by faith, और विश्वास से सुनना, not by people's word. और लोगों के शब्दों से नहीं. And act in faith, और विश्वास में काम करना, not by people's opinion. और दूसरे जो कहते हैं उस पर नहीं. And receive in faith, और तीसरा मुद्दा जो है पा लेना विश्वास, not in your fleshly doubt. और अपने खुद शारीरिक जो शंका है उससे नहीं. And church, और कलीसिया, today, आज God specifically want to talk to some people. और प्रभु जो है कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं. Like I said earlier, और मैंने पहले भी कहा था, healing is the biggest miracle ever. और चमत्कार जो है, चंगाई है, वो सबसे बड़ी चमत्कार है लोगों के जीवन में. For physical healing, और शारीरिक जो चंगाई है उसके बारे में. Jesus is the best doctor. और प्रभु यीशु सबसे उम्दा डॉक्टर है. Remember when your doctors give up, और याद रखना, जब आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है, ask Jesus that, Jesus, is this miracle for me, that you want to heal me of this thing, or you want to turn it into a testimony for something else? और प्रभु से पूछना कि प्रभु क्या ये चमत्कार मेरे लिए है, या फिर इससे आप जो है मुझे गवाही दिलाना चाहते हो. And if you hear it right, और अगर आप सही सुनते हो, declare that you're healed by His stripes. और बस घोषणा करते रहना कि प्रभु यीशु के सामर्थ से जो है आपको छुटकारा है, उसके कोड़े खाने से. And second is emotional healing. और दूसरी बात जो है आपके इमोशनल हीलिंग, That is much bigger miracle than the physical one. और शारीरिक रूप से जो है आपके समझ में जो चंगाई है वो बहुत ज़्यादा है. People go to this psychiatrist. और लोग जो है डॉक्टरों के पास जाते हैं अपनी इलाज करवाने. They take this antidepressants. They go for this long journey for healing. बहुत समय ले लेते हैं उन लोग उस सोच में जो है उनको छुटकारा पाने के लिए. But somewhere the battle is inside their mind and it's not settling. लेकिन कुछ बात ये हो जाती है कि उनके जो लड़ाई है, वो जंग है, वो उनके सोच में है, वो खत्म नहीं होता. Some wounds and scars are not healing. कुछ जो घाव है वो कभी ठीक नहीं होते. And their past is just running behind them every single day. और उनका पिछला जीवन है वो उनके पीछे आते रहता है The रोज. people who don't know God, और जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, what do they end up doing? और वो लोग क्या कर बैठते हैं, Ending their precious life. और वो लोग अपना खुद का जीवन गवा बैठते हैं. So if you want emotional healing, और अगर आप जो है आपके सोच में एक चंगाई पाना चाहते हो, Jesus says to them, और प्रभु आपसे कहना चाहता है, peace I leave with you. प्रभु ने आपको शांति भेजा है. Be still.
आप थमे रहना, because He gives you peace क्योंकि वो आपको शांति देता in है, your heart, mind, and soul. आपके हृदय में, आपके सोच में, आपकी आत्मा में। And lastly, और आखिरी मुद्दा, spiritual healing. और आपकी आत्मा में एक चंगाई। You know what is spiritual disease, Angel? क्या आपको पता है कि आत्मा की बीमारी क्या है? When you sin, जब आप पाप करते हो, it could be the smallest, और शायद छोटा सा पाप होगा, but it is still sin, लेकिन वो तब भी पाप ही है, and you get affected by it. और उससे जो है आप जो है आपके जीवन में जो है बहुत काम जो है गलत हो जाता है। It's a miracle to get healed spiritually. आपको जो है एक चमत्कार की जरूरत है आत्मा में चंगाई पाने के लिए। No matter how many pastors tell you, no matter how many relatives just identify your sin, you won't get healed from it. भले ही आपके पासवान आपसे कहेंगे कि आपने ये पाप किया है, आपके संसार के लोग कहेंगे कि आपने ये पाप किया, लेकिन जब तक प्रभु यीशु आपको चमत्कार नहीं देता है, तब तक आपको उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। It's only this dose of revelation can bring you out of it. आपको सिर्फ प्रभु की जो प्रकाशन है वही आपको इससे बाहर निकाल सकती है। Miracle is a revelation. और चमत्कार जो है वो एक खुद एक प्रकाशन है, Healing is a miracle. और चमत्कार जो चंगाई है वो एक चमत्कार है। So church, तो कलीसिया, there are many people here बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, who are particularly numb emotionally. और वो जो है अपने सोच में जो है बहुत एकदम ठंडा पड़ गए हैं, That particular type of people I'm going to pray for you right now. और हम उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। They might be the ones physically or spiritually, but God is speaking particularly to the ones who are feeling numb inside. आप शायद बीमार होगे शारीरिक रूप में, या फिर आप कोई पाप में जूझ रहे होगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए नहीं, मैं खास कर जो अपने सोच में जो है एक मृत्यु महसूस करते हैं, जो अब आपको लगता है कि आपका सोच जो है बस बंद हो चुका है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। It's your time to receive your miracle. अभी आपका समय है आपको चमत्कार पाने God is going to heal your heart. और प्रभु आपके हृदय को जो है चंगाई करने He's going to वाला restore it, है, और वो जो है आप उसको पुनरुत्थान mend दिलाएंगे, it all over again, वापस से उसको जो है जलाएंगे make it all new, और सबसे उम्दा बनाएंगे, for new joy, एक नई खुशी के for लिए, new hope, एक नई आशा के for लिए, new peace. एक नई शांति के All लिए, your pain is going to go, और सारा दर्द जो है चला and it's going to जाएगा, be replaced with peace and relief. और वो जो है शांति और छुटकारा से जो है बदला जाएगा। If you're that person, put your hand on your heart. अगर वो आप है तो आपके हृदय में अपने हाथ को रखना Lord Jesus, और कहना, प्रभु यीशु, I pray for this kind of people और प्रभु यीशु मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, who are feeling emotionally numb, और जिनकी सोच में जो है वो लोग मर चुके हैं, who feel nothing inside, और उनके अंदर उनको खाली महसूस होता who है, feel completely hopeless and lonely. उनको अकेलापन महसूस होता है, और उन लोगों को जो है कोई आशा नहीं है। I rebuke the spirit of loneliness in them. और प्रभु अकेलेपन की उस आत्मा को हम नकारते यीशु के I नाम से, rebuke the spirit of anxiety, और जो घबराहट लाती है उस आत्मा को हम यीशु के नाम से and नकारते I हैं, speak peace. और प्रभु की शांति की घोषणा I करते speak हैं, restoration, और प्रभु एक पुनरुत्थान की घोषणा करते and I हैं, speak life into them. और प्रभु इनके जीवन में जी ले डालते हैं, And Holy Spirit, और पवित्र आत्मा let your fire fall right now, आपका जो आग है वो उतर आने दे, and let them be completely restored and be a new person transformed by your Holy Spirit. और पूरे रीति से उनको एकदम नया बनाना प्रभु परमेश्वर आपके आत्मा से। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। So church, how do you receive your miracle? तो कलीसिया, आप अपने चमत्कार को कैसे पाओगे? Hearing by faith, पहले तो है विश्वास से सुनना, acting in faith, और विश्वास में काम करना, and receiving in faith. और विश्वास में पा लेना। Happy miracles to you. और आपको जो है चमत्कार मुबारक हो। And I hope you all enjoyed today's service. और मुझे लगता है कि आपने जो है आज का सभा बहुत मजे उठाया, We forgot something, Angel. और हम कुछ भूल गए, We have a gift for you. और आपके लिए हमारे पास एक तोहफा है, The best gift you could ever receive in your life. सबसे बड़ा तोहफा आप कभी अपने जीवन में पा सकते This is where your miracle starts from. हैं, और जहाँ से आपका चमत्कार शुरू होता है। And the gift is... और वो तोहफा ये है, Are you ready? क्या आप तैयार हो? Angel, are you ready? प्रिया, क्या आप तैयार हो? What do we say? हम क्या कहते हैं? Oh, yes. ओ यस, I am ready. हाँ मैं तैयार हूँ। The gift is वो तोहफा ये है, Jesus. यीशु। For all your faith and miracle, it all starts from Jesus. He is the source of joy. आपके सारे चमत्कार और आपके सारे विश्वास, वो सब का कारण सिर्फ यीशु है।
वहीं से आपकी खुशी शुरुआत the होगी real freedom, और वो आजादी वहीं से the शुरुआत one true lover, होगी। और सच्चा प्यार करने वाला वहीं से the शुरुआत Alpha and the Omega. होगी, जो शुरुआत और अंत है। If you're watching this video for the first time अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो and you want to be friends with Jesus और आप जो है प्रभु से दोस्ती करना चाहते and हैं live a life of miracle, और आप जो है एक चमत्कार का जीवन बिताना चाहते you हैं, have to do just one simple thing. आपको सिर्फ ये छोटी सी बात करनी है, Just one simple thing. एक छोटी सी बात। Take 10 seconds, बस 10 सेकंड लीजिए repeat this prayer after और me, ये प्रार्थना हमारे पीछे दोहराइए and boom, you're a part of Jesus' family. और बूम, यहाँ पर आप जो है प्रभु के परिवार का एक हिस्सा हो। Let's all close our eyes. और हम प्रार्थना करेंगे। Dear Jesus, और प्यारे यीशु, I thank you मैं धन्यवाद देती for हूँ, giving your life for me, आपने अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान कर for दिया dying for me, और मेरे लिए अपना जान देने के लिए, for raising again for me. और मेरे लिए आपने जी उठा फिर से। God, प्रभु, today I give my life to you. आज मैं अपना जीवन आपको देता हूँ Wash me clean. और मुझे साफ करना, Forgive all my sins. मेरे सारे पाप को जो है आप झिलाना। I say no to the world और मैं इस दुनिया को नकारती हूँ and I say yes to Jesus. और मैं प्रभु यीशु के लिए हाँ कहती हूँ And make me one in your family. और मुझे आपके परिवार में एक बनाना I chose to follow you. और मैं आपका पीछा करना And चाहती thank you for accepting me. हूँ और धन्यवाद कि आपने मुझे अपनाया। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमेन। That was a good service, Angel. और ये बहुत अच्छा सभा था प्रिया, And don't forget, और भूलना नहीं, this week is Connect Week. ये हफ्ता जो है कनेक्ट वीक है Don't forget to attend a और Connect आप group. भूलना नहीं कि आप भी एक कनेक्ट ग्रुप में जरूर भाग If लें। you're not a part of Connect group, make sure you comment in the link. और अगर आप कनेक्ट ग्रुप नहीं जानते हो या फिर नहीं चाहते हो, आपके नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना And we will get you to one Connect group. और हम जो है आपको एक कनेक्ट ग्रुप जरूर पहुंचा। See you next week, और हम आपको अगले रविवार मिलेंगे Sunday 6 p.m. और रविवार को शाम को 6 बजे in amazing service of IC Mumbai. और आईसी कलीसिया के बहुत अच्छे अद्भुत समय में। Stay safe, और आप सुरक्षित रहना stay blessed. और प्रभु की आशीष आपसे बने रहे।